स्टूडेंट, इससे पहले हमने नाबार्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज एक्सिम बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज़ द premier export finance institution of the country, set up in 1982 under the Export Import Bank of India Act 1981 में, यानी इसका एक्ट बना और 1982 में इसे सेटअप किया गया। Student, Government of India launched the institution with a mandate not just to enhance export from India, but to integrate the country foreign trade and investment with the overall economic growth. It means since its inception, Exim Bank of India has been both catalyst and a key player in the promotion of cross-border trade investment। यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं तो ये एक की का काम करती है, की प्लेयर फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रॉस द बॉर्डर trade and investment, commencing operation as a purveyor of export credit like other export credit agencies in the world. Exim Bank of India has over the period evolved into an institution that plays a major role in partnering Indian industries, particularly the small and medium enterprises, in their globalization efforts through a wide range of products and services offered at all stages of the business cycle, starting from import of technology and export product development to the export production, export marketing, pre-shipment and post-shipment and overseas investment। स्टूडेंट, यानी हम विदेशों से व्यापार करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक्जिम बैंक की प्लेयर का काम करती है। यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी व्यवसाय करना चाहते हैं विदेशों में तो वहाँ पर एक्सिम बैंक एक तरीके से की प्लेयर का काम करेगी। जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सिम बैंक। नंबर 1, टू एंश्योर एंड इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इन सॉल्विंग द एलाइड प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड बाय द एक्सपोर्टर्स इन इंडिया। यानी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एक्सपोर्टर्स के लिए तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। नंबर 2, टू पे स्पेसिफिक अटेंशन एंड टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। नंबर 3, एक्सपोर्ट प्रोजेक्शन। Number 4, to facilitate and encourage joint ventures and export of technical services and international and merchant banking। किसको प्रमोट, किसको एनकरेज करती है? जॉइंट वेंचर्स, एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल सर्विसेज के लिए और इंटरनेशनल एंड मर्चेंट बैंकिंग के लिए एक्सिम बैंक एक तरीके से प्रमोटर का काम करती है।
Student, the bank overseas investment finance program offers a variety of facilities for Indian companies and acquisition overseas. And Exim Bank of India has been prime mover in encouraging projects. Export from India. The bank provides Indian project exporters with a comprehensive range of service to enhance the prospect of their securing export contracts, particularly those funded by multilateral funding agencies like the World Bank, Asian Development Bank, African Development Bank, or European Bank for Reconstruction and Development. स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बैंक्स प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय वे ऑफ टर्म्स लोन्स इन इंडियन फॉरेन करेंसीज फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटी. क्या करती है एक्जिम बैंक? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है एज ए लोन इन इंडियन फॉरेन करेंसीज के लिए. विदेशों से व्यापार होगा तो विदेशी करेंसी में देना होगा. ये सब काम करती है आपकी एक्जिम बैंक. द बैंक हैज़ लॉन्च्ड द रूरल इनिशिएटिव्स प्रोग्राम विद द बजट और यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिंकिंग इंडियन रूरल इंडस्ट्री टू ग्लोबल मार्केट. यानी ग्रामीण क्षेत्र को डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए ये एक्जिम बैंक काम करती है. बैंक प्रोवाइड loans, financial assistance by way of term loans, the loan, foreign currency for setting up new production facilities, expansion, modernization, upgradation of existing facilities, and for acquisition of production equipment technology. Such facilities particularly help export-oriented small and medium enterprise for certain export capabilities. Under the Export Marketing Finance Program, Exim Bank supports small and medium enterprises in the export marketing, include financing of soft expenditure. Exim Bank supplement its financing program with a wide range of value added information. स्टूडेंट, फीचर्स भी हैं इसके, जैसे इंटरेस्ट सबमिशन ऑफ 2% फॉर प्री शिपमेंट, क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ 4%, फिनिश्ड leather export shall be entitled for duty, credit scrip, etc. देखिए, रेडीमेड गारमेंट सेक्टर ग्रांटेड एनहेंस्ड सपोर्ट अंडर द मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्क्रिप फॉर ए पीरियड ऑफ फर्दर 6 months. स्टूडेंट्स, के बाद आते हैं इसके फंक्शन. देखिए, स्टूडेंट नंबर 1, कॉरपोरेट बैंकिंग ग्रुप. कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्रुप यानी ये फंक्शंस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. कॉर्पोरेट बैंकिंग ग्रुप हैंडल्स वेरियस फाइनेंसिंग प्रोग्राम्स फॉर एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज. नंबर 2 है प्रोजेक्ट फाइनेंस और ट्रेड फाइनेंस. देखिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस ग्रुप डील्स विद द सर्विसेज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट. Credit such as pre-shipment credit,
suppliers credit. The project related to the financing of export transactions of the agricultural sector are also handled by this group. यानी जितनी भी सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट सच एज प्री शिपमेंट. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट सर्विस ग्रुप. Export Services Group provides service such as value-added information for promoting investment and advisory services. जैसे एक्सपोर्ट सर्विसेज ग्रुप जैसे इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके रिगार्डिंग उसमें एडवाइजरी यानी एडवाइस देना, इंफॉर्मेशन देना और इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट करना, यानी मोटिवेट करना. नेक्स्ट, एक्सपोर्ट मार्केटिंग ग्रुप. एक्सपोर्ट मार्केटिंग ग्रुप प्रोवाइड्स लोन्स assistance for exporters, example Indian company, to perform export operation to overseas market. इन इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे लोन की सुविधा प्रदान करना. नेक्स्ट, सपोर्ट सर्विसेज ग्रुप. Support Services Group render services which include areas of planning, research, corporate finance, loan recovery, etc. Next, small and medium enterprises. Various lending, financing assistance programs are formed to handle credit proposals from small and medium enterprises. नेक्स्ट, कंसल्टेंसी सर्विस. कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करना फॉर इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए. लास्ट, कंट्रीब्यूशन टू इक्विटी फंड. स्टूडेंट, आज हमने एक्जिम की मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव एंड उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस किया. थैंक यू स्टूडेंट.